फर्स्ट स्टोरी थी उसमें एक इंसान की कि वो तालाब किनारे बैठा होता है और बहुत ही ग्रीफ में होता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है ना. आई वाज लाइक रिलेटेबल. Hi, my name is Bipasha Tiwari, and welcome to the 5th episode of Life's Great and Other Lies. If you're new here, hi, thank you for tuning in. And if you're coming back here again for whatever it's time, thank you for coming back again. Thank you for giving me your valuable time. So, Life's Great and Other Lies, for the people who don't know, is a podcast where I sit down and talk about everything and anything that I want to, and you guys do your chores or make art or just do whatever you want to. So now that I am finally in hostel and I finally have the opportunity to talk to people in real life, I have taken it upon myself to have as many real guests instead of virtual guests on the podcast. And last podcast, my roommate Aditi was on the podcast. This episode, my friend Rahul is on the podcast. Hi, Rahul. Hi, Bipasha. So Rahul, would you like to introduce yourself? Hello, I'm Rahul, currently an IPM student at IIM Ranchi, and that's all. We'll talk and I'll introduce myself. Yeah, bilkul. So Rahul and I are batchmates, and that's how we know each other. So okay, a really funny thing that happened was I was one of the last people to sort of join the IPM program, and till then like ऐसे meets होती रहती थी हमारी batchmates की. इंडक्शन भी लगभग हो चुका था. हाँ, इंडक्शन हो चुका था. मैं मतलब I think पहली क्लास हो गई थी, उसके बाद वेट लिस्ट मूव की, and that's when I got into IPM. And I remember like पहली meet में like the first day that I joined the WhatsApp group, meet हुई थी रात को, and I entered the meet and all of a sudden everybody was calling Rahul God. And I was just like, यार ये लोग इस बंदे को भगवान क्यों बुला रहे हैं? What's the story behind that? Because I still don't know why people call you God. Actually, in the first official meet, the induction meet, there was a trainer who was just exercising मतलब exercise करवा रहे थे whole batch को. तो he asked us to do act whatever character you want. You just make your own character. So people become different kinds of character, and I just became God. Cause why not? I wanted to I like to study theology, and this was the most. So just मैं भगवान बन गया. Okay. So whatever professor asked that Rahul मैं कुछ act करता था. Then he says that Rahul ये क्यों कर रहे हो? Then I says sir I am God. जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा. You can't मतलब interrupt me or you can't do me. तो मैथ्स प्रोफेसर थोड़ा सा चुप करा दिया. तो सब ऐसा लग रहा था कि ओ real God. Okay, now it makes much more sense. क्योंकि अब कुछ भी होता है सब बोलते हैं हाँ राहुल तू करवा दे, तू तो भगवान है. It makes a lot of sense now. Okay, so the first sort of question that I have, and I think we've not really talked about this even like in person, but how did like you join IPM and why did you join IPM? So actually when I was in class 9th, है ना, क्लास 9th में मैथ्स और फिजिक्स ने मुझे बहुत भयंकर हिट कर दिया. इतना कि नहीं हो सकता. I don't want to study this now, ऐसा हो गया. So अब मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स मुझसे नहीं होगा. ओके, स्पेशली फिजिक्स. मैथ्स तो फिर भी ठीक है ना. सो आई थॉट ऑफ कॉमर्स. ओके, बिकॉज आर्ट्स ऐसा था कि मैं रेगुलरली उसको पढ़ता रहता था, तो आई जस्ट डोंट वांटेड टू हायर स्टडीज में नहीं पढ़ना चाहता था. और मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा पैसा कमाना है लाइफ में. तो 9th में आई थॉट कि आई विल टेक कॉमर्स एज माय स्ट्रीम. एंड इन 10th आई केम टू नो अबाउट द IPM. मतलब 9th में कॉमर्स लेके मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं MBA करूँगा, नॉट CA, सिर्फ MBA. तो 10th में IPM के बारे में पता चला कि IPM इंदौर का कोई सा प्रोग्राम है, बट तब तक ऐसा फाइनलाइज नहीं किया था that I'll be studying there in IIM Indore. But after 10th I was actually मैंने 6th से लेकर 12th तक 10th तक I was studying in Jawahar Navodaya Vidyalaya.
This is the school chain by central government. Rajiv Gandhi introduced this school chain. This is to spread education in the rural areas. Okay, so it's a central government school, है ना. You just आप एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं क्लास 5th में, उसके बाद आप एंटर करते हैं स्कूल में. क्लास 6 से लेकर 12th तक होती है. तो 5 साल मैंने वहाँ पढ़े. तो क्योंकि 5 साल बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया, सो उस स्कूल में जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ कॉमर्स स्ट्रीम नहीं था. तो आई हैड टू गो टू अ डिफरेंट स्कूल which was in the Devas district from Badwani district. Each district have a Navodaya Vidyalaya. Okay, so from Badwani district I was shifted to Devas district because I wanted to study commerce. But all of the government institutions are not the same. So जो देवास वाला स्कूल था उसकी फैसिलिटीज में मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा कमी लगी. ओके, सो मैंने जस्ट प्रिंसिपल से एक दिन पूछा कि वाइस प्रिंसिपल से कि सर थोड़ा सा ऐसा है आपके ना पानी की कमी है, ये थोड़ा सा है, और भी बहुत सी चीज़ें थी, बट आई डोंट वांटेड टू मेंशन देम इन फ्रंट ऑफ हिम दैट योर स्कूल इज लाइक दिस, है ना, एंड आवर स्कूल वाज बेटर वेयर आई स्टडीड 10वीं तक जहाँ पढ़ाई करी. तो अब हो गया कि सर ने बोला कि सालों से बच्चे रह रहे हैं, आपको भी ऐसा पढ़ना पड़ेगा इसी माहौल में, ऐसा कुछ अपग्रेड नहीं हो सकता, है ना. सो थोड़ा ऐसा लफड़ा हो गया कि मैंने एक ईमेल लिख दिया नवोदय विद्यालय के डिप्टी कमिश्नर को ऑफ भोपाल रीजन, है ना. तो थोड़ा सा ऐसा इशू हो गया, तो डिप्टी कमिश्नर ने वो ईमेल मेरे स्कूल में ही फॉरवर्ड कर दिया. ओके, कि हाँ ये स्कूल. तो ऐसा थोड़ा सा हो गया कि मेरे को बहुत अजीब लगने लगा कि मैंने उनकी कंप्लेन की और पूरा स्टाफ को पता चल गया कि राहुल, देयर इज अ गाय राहुल जो कि मतलब ऐसा रेबेलियन, है ना, कंप्लेन कर दी उसने. तो थोड़ा सा मेरे को अजीब फील होने लग गया कि सब मुझे जान रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, और कोई मुझे बोल रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो टोन है उस बात में कि हाँ ये इसने रिवोल्ट किया था वगैरह. सो अब 1-2 महीना हो चुका था 11th स्टार्ट हुए, और मेरा बिल्कुल एक्चुअली जो वहाँ पर मतलब जो पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे, इट वाज लाइक बहुत, मैंने जो सोचा था ना कि मैं ऐसे पढ़ूंगा 11th 12th, वैसा ज़रा भी नहीं था कि इतना को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, इतने मज़े करेंगे. तो मतलब आई फेल्ट रियली बैड कि मैं शायद अपने 2 साल यहाँ वेस्ट कर दूंगा. तो अब मुझे पढ़ना था किसी प्राइवेट स्कूल में. प्राइवेट तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना. सो है ना, ओके, मैं स्कूल से बाहर आ गया, है ना. टीसी की एप्लीकेशन लिख दी कि आई वांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई डोंट वांटेड टू स्टडी इन दिस स्कूल. और इसको मेंशन करूँ या ना करूँ? देखो, मैंने एप्लीकेशन में लिखा था, सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखा था, I don't believe on your system. So I don't want to study here. Okay, because मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं रही है. मतलब जो भी मैं फील कर रहा था वो लिख दिया था. Just a stupid teenager. जो फील किया लिख दिया कि मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आपका सिस्टम ढंग की एजुकेशन दे सकता है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज मतलब लिख दिया. प्रिंसिपल ने वो एप्लीकेशन पढ़ा, मुझे बुलाया, ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मतलब यही रीज़न है. मैं थोड़ा डाटा दूसरे टीचर्स वगैरह ने समझाया, तो मैंने जस्ट नॉर्मल फॉर्मल एप्लीकेशन लिख दी और मुझे टीसी मिल गया. जब टीसी मिला तब तक ये था कि मुझे सीबीएसई स्कूल में पढ़ना था, बट जब मुझे टीसी मिला, ओके, तो अराउंड दैट 2-3 डेज बचे थे सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन को. ओके, सीबीएसई बोर्ड रजिस्ट्रेशन जो होता है ना स्कूल का, उसके. और मैं गया प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ एक मेरे टाउन में स्कूल है, वहाँ गया और देखा कि फीस कितनी है. पहले तो 60,000 फीस, लाइक अनबियरेबल फीस. फॉर मी इट वाज लाइक शहर का सबसे महंगा स्कूल है, 60,000 ना, यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे हम. दूसरा स्कूल, उसमें इतना,
उसमें भी अराउंड 50K था। हाँ. ना यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ. तो इधर उधर से देख के एक स्कूल मिला, ठीक ठाक अच्छा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ. है ना। तो वहाँ फीस थी 32,000। हाँ. तो बोला मैंने जब खुद को इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल से, मैंने बोला आपसे 30,000 लेंगे। तो 30,000 आप पे कैसे करेंगे? अब मैं कैसे पे करूँ? है ना, घर पे पैसा है नहीं, मैं कैसे पे करूँ? लाइक बाहर आया ऑफिस में, मम्मी को कॉल, मम्मी घर पे कितना पैसा है? मम्मी ने बोला 2,000 रुपये हैं। तो मैंने सोचा अभी एडमिशन के लिए कितना चाहिए? आप आधा अमाउंट अभी भर दीजिए। नो मतलब एक्चुअली मैं आपको बाद में फ़ी पे कर सकता हूँ, बट आप मुझे ऐसा एडमिशन दे दीजिए क्योंकि थोड़े ही दिन बाकी हैं। हाँ. वरना मुझे कोई स्कूल नहीं मिलेगा और मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा। हाँ. है ना। तो प्रिंसिपल ने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब मेरी पूरी स्टोरी सुनी, बैक स्टोरी की। हाँ. मतलब कैसे हम एक ठीक ठाक फैमिली थे व्हेन माय फादर डाइड व्हेन आई वाज इन क्लास 8 और जस्ट गिर गया फैमिली। फाइनेंशियल जो वेल्थ होती है सोसाइटी में, जो मतलब सब आपको लोग जानते हैं, पूछते हैं कि हाँ कैसे हो वगैरह, वो पूरा ऐसा गिर गया। हाँ. तो अब उतना था नहीं, पैसा नहीं था। तो सर ने, जो भी प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला कि देख राहुल, ऐसा लगता है कि तू पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ. है ना। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट स्कूल, सो पर्सनली माई सजेशन टू यू इज डोंट स्टडी इन माई स्कूल। हाँ, मतलब क्यों? बिकॉज मेरे को तो लगता है कि मतलब मेरे पास उतने अच्छे टीचर नहीं है जो तुझे पढ़ा सके। मतलब तेरा जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है। हाँ. है ना। यहाँ पर वो टीचर्स हैं जो बुक पढ़ते हैं और अगले दिन आके बस वही बोल देते हैं। है ना। तो यहाँ पर बस तू एडमिशन लेगा और बस एग्जाम देगा, कुछ बेनिफिट नहीं दे पाएगी मेरी स्कूल तुझे। हाँ. है ना। और मतलब, और ये मेरा अच्छा खासा स्कूल है, इस पूरे टाउन में 4th या 3rd रैंक है मेरे स्कूल की। तो मतलब ऐसा सोच ले कि अगर इससे लो स्कूल है तो कैसा होगा। तो माय सजेशन इज कि तू बैक तेरे स्कूल जा, वहाँ शायद नवोदय विद्यालय, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो बेटर टीचर मिलेंगे, तो वापस जा। है ना। अगर जा सकता है तो जा। आई वाज लाइक नहीं, मैं उस स्कूल में नहीं जा रहा। है ना। यहाँ पे भले पढ़ लूंगा, टीचर नहीं पढ़ाए तो घर पे आके इंटरनेट से पढ़ लूंगा। घर पे मतलब मेरे पास काम रहेगा, क्योंकि दैट वाज अ रेजिडेंशियल स्कूल, यू आर फुल्ली पैक्ड, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल, इंटरनेट और एनीथिंग एल्स। सो यू आर कंप्लीटली पैक्ड, यू कांट डू एनीथिंग। ओके, सो मैंने सोचा ये कर लूंगा, बट फिर जैसे ही घर गया ना, तो मुझे थोड़ा, जैसे घर गया तो ऐसे बहुत सारे, मतलब मम्मी ने अपने फ्रेंड्स को कुछ बोला था कि राहुल को समझाओ, ऐसा क्या कर रहा है, वो स्कूल छोड़ के आ गया। तो है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, इतना मतलब जो स्कूल आपको कपड़े तक पहनने को दे, आप उस स्कूल को छोड़ दो। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज छोड़ दी है ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल मेरे डिस्ट्रिक्ट में था, वो डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल था। ओके, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ के ये लड़का आ गया, पागल है तो, है ना। तो मैं एक और स्कूल में गया कि सोचा वहाँ थोड़ा फीस कम कर देंगे। हाँ. है ना। तो उनकी फीस थी 28,000। और उन्होंने, और पहले वाले प्रिंसिपल से जो पूछा था ना, उनका टाउन में स्कूल रैंक था 3rd और इनका अराउंड था 4th या 4th 5th ऐसा। और उन्होंने बोला कि मतलब हाँ एडमिशन ले जा, टीसी ले आओ वगैरह। हाँ. और वो इतनी हड़बड़ा जल्दी में एडमिशन करवा रही थी। फिर मैं थोड़े रुको मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया, बाहर निकला और जस्ट बैठ के सोच रहा था क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए। 28,000, क्योंकि ये तो बहुत स्पीड में एडमिशन करवा रही है मैडम। एंड दैट वाज लाइक, मैं तुझे पर्सनली एडवाइस देता हूँ। तो आई वाज लाइक नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। एक दोस्त को मतलब एक भैया है, उनको कॉल लगा, गवर्नमेंट स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होता है। हाँ. ओके, तो हाँ, तो कुछ ऐसा रास्ता है कि मैं घर पे रह के पढ़ लूँ? तो मैंने सीबीएसई छोड़ दिया। डेट चले गई, अब सीबीएसई चला गया। हाँ. और मुझे पता चला गवर्नमेंट स्कूल का जो रेगुलर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वो भी चला गया। आई वॉज लेफ्ट विथ, मतलब अब मेरे पास चांस ही नहीं था
किसी स्कूल में एडमिशन लेने का, या तो नेक्स्ट ईयर वेट करो, है ना, नेक्स्ट ईयर 1 साल गैप छोड़ के 11th-12th फिर से पढ़ो, बट आई वाज लाइक 1 साल वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक ऑप्शन था NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मैंने वहाँ अप्लाई करने का सोचा, बट मेरे एक टीचर थे पुराने स्कूल से, उन्होंने एडवाइस किया कि NIOS में मतलब ऐसा ही होता है, उतना मतलब एग्ज़ाम वगैरह सीरियसली नहीं होता है। True. तो एक काम करो, जो या तो CBSE ऐसा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर दो, या फिर MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ से अप्लाई कर दो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तुम्हें बस एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, बस एग्ज़ाम दे देंगे। बट फिर ऐसा बहुत सारे सोसाइटी से सजेशंस आने लगे कि ना प्राइवेट कोई वैल्यू नहीं करेगा, स्कूल में थोड़ी ना आवारा बच्चे देते हैं ऐसा एग्जाम, सिर्फ एग्जाम देने चले जाते हैं। जैसे जो बड़े हो गए है ना, जो नेता लोग बड़े हो गए, या कुछ लोग ऐसे 5th तक पढ़े हैं, मतलब 8th तक पढ़े हैं, वो ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म तू क्यों दे रहा है, यू आर यंग एज वगैरह, 1 साल छोड़ दे, रेगुलर हो जाना। बट आई वाज लाइक 1 साल नहीं वेस्ट करना। तो एक ऐसा था कि मैं फाइनेंशियली वीक, ऊपर से मैंने छोड़ दी स्कूल, पूरा सोसाइटी में ऐसा हो गया कि ये तो गया काम से। क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है कि जो भी एक बार स्कूल छोड़ दिया वो खेती में लग जाता है, मजदूरी में लग जाता है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर माहौल उसको खींच लेता है ना, क्योंकि वेरी फाइनेंशियली वीक है ना, और लोग मतलब उधर का माहौल एकदम ऐसा गरीब और बहुत ही अलग टाइप का है ना। तो ऐसा जनरली बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ जाना मतलब लाइक जस्ट उल्टी सीधी हरकतें करना, इधर उधर इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग थिंग्स। हाँ। तो मैंने सोचा था मैं अगर वैसी इमेज बना लिया तो ऐसा सब कुछ बर्बाद है। तो मैंने सोचा कि हाँ अब IPM पे फोकस करते हैं, क्योंकि राइट आफ्टर 12th कॉमर्स के बाद यू डोंट हैव गुड ऑप्शन। मतलब अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अगर वो बहुत अच्छा भी कॉलेज है, बट यू विल नॉट हैव दैट टैग दैट यू आर इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट कॉलेज। अरे क्राइस्ट यूनिवर्सिसिटी, वो फलाना यूनिवर्सिटी वगैरह, मतलब they are just college. But when you are doing engineering, you just तुम जब जैसे नाम सुनते हो IIT, IIT नाम सुन के ही सोसाइटी में एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है। So मुझे अब जाना था IIM, IPM। तो मैंने सोच लिया कि जो मेरी सोसाइटी में जो मतलब ऐसी इमेज खत्म हुई है ना, उसको वापस करना है। तो IPM करना है ना। फिर मैं देखने लगा वीडियोस कि IPM कैसे करें, है ना। तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली इधर उधर सब कुछ ऐसा पढ़ने लग गए, है ना। 11th घर पे ही पढ़ाई करी, YouTube पे इधर उधर सारे पूरे वीडियोस, है ना। और प्लस मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ये बहुत पसंद थे, तो ये भी साथ में पढ़ता रहता था बहुत ही ज़्यादा, है ना। इतना कि मैंने बायजूस का एक्चुअली वो फ्री में आप कुछ देर तक पढ़ सकते हो, तो मैंने अराउंड 30 दिन में बायजूस पॉलिटी का जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी, क्योंकि मैं स्कूल में था ही नहीं, मेरे पास कोई बॉर्डर थी ही नहीं, मैं रैंडमली कुछ भी करता था, बस थोड़ा प्रोडक्टिव। तो मज़ा आ रहा था लाइफ में, है ना। बस एक फील हो रहा था कि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है ना। और फिर आया अराउंड February, है ना। तो एक हमारे यहाँ YouTube चैनल्स होते हैं, जैसे मैं ट्राइबल हूँ, तो वो ट्राइबल कंटेंट बनाते थे, ट्राइबल गाने, है ना। तो वो भैया जस्ट अपना स्टूडियो उखाड़ के लाए थे इस टाउन में, बोले अब स्टूडियो नहीं करूँगा मैं, अब मैं कुछ और करूँगा, है ना। तो स्टूडियो उन्होंने ऐसा बैक एंड गैराज में रख दिया। बट क्योंकि YouTube से इनकम हो रहा था, तो स्टूडियो उनको फुल ख़त्म नहीं करना था। मतलब गाने बनाने थे, बट अब उतना रेगुलर नहीं था। तो उन्होंने वो एक वीडियो बना के लाया, मेरे पास कंप्यूटर था, वीडियो एडिट करेगा मेरे लिए, बोला हाँ कर देंगे। मैंने वीडियो एडिट करके उनको देना 2-1 वीडियो एडिट करके दिए। फिर उन्होंने बोला कि आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना। और मैं रैप सॉन्ग सुन रहा था और गा रहा था साथ में, मेरे लिए रैप सॉन्ग बनाएगा? बना देंगे। है ना। हाँ, बट तेरे को
आदिवासी में बनाना पड़ेगा, मतलब हमारी जो बारेली लैंग्वेज है उसमें बनाना पड़ेगा। हाँ. तो लाइक ठीक है बना देंगे है ना, कोई बात नहीं है ना। तो उससे पहले एक शूट था कि हाँ एक गाना उन्होंने बनाया था, उसका वीडियो शूट करना था, तो वो सब शूट किए, हम कैमरा फ़ोन जो भी लेके शूट कर दिए। फिर मेरे को ना वो शूट और वीडियो गाना पसंद नहीं आया, तो मैं बस घर पे आया, एक बीट चालू किया और जस्ट कुछ भी गाने लगा रैंडमली। हाँ. और वो मैंने बारेली में गा दिया। मैंने सोचा ये तो अच्छा गा दिया मैंने, रिकॉर्डर दबाया और बीट के साथ गाने लगा, है ना। तो एकदम मतलब थोड़ा जमा, है ना। फिर मैंने वो जाके सुना है। हाँ. ये सुनो, तो उधर वो गाना था, सोंदारे उठनो लाकड़ा धोपना हाथ से सुनो खोपशा पीना, मतलब लैंग्वेज में कि सुबह उठना, है ना। मतलब? तो आग सुबह उठो, है ना, हाथ सेको क्योंकि ठंड है, क्योंकि फरवरी स्टार्टिंग महीना था, ठंड है ना, तो हाथ सेको, आग जला के सभी सेकते हैं, फिर चाय ला के पी लो, है ना। मतलब जस्ट ऐसे ही रैंडमली बना दिया वो। बहुत, और ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया था हमारे एरिया में। तो पूरा लिख तो अगले 2 दिन तक हम लिरिक्स लिखने बैठ गए कि हाँ उसको कंप्लीट करते हैं और गाना बनाते हैं। हाँ. तब तक मतलब उससे पहले क्या था कि मैं रैप सॉन्ग्स वगैरह बहुत सुनता था, और एक यूट्यूबर था रोहन कारियाप्पा करके। हाँ. रोहन कारियाप्पा बताता था कि कैसे आपको आपके गाना बीट्स पे किस तरह बोलना है, वो सब मुझे आ गया था। हाँ. थोड़ा सा, तो वही यहाँ अप्लाई कर दिया और मतलब गाना लिख दिया। फिर उन्होंने अपना स्टूडियो का सामान लिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने अभी तक ढंग से प्रोफेशनल वीडियो ऐसा कुछ लिया नहीं था, ना ही मैंने लिया था, नो एक्सपीरियंस। हाँ. तो अपने इसको शूट का करें, मेरे गांव करते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला तू और रोहित चला जाना और शूट करके ले आना एक दिन में। तो हम सुबह निकले, क्या शूट करें, मतलब जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। हाँ. है ना, मतलब जो बोल रहे हैं वही कर लेते हैं, है ना। तो जो गाने में बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, है ना। तो वो मेरा वीडियो भी है। हाँ. यूट्यूब चैनल यू कैन फाइंड, मतलब राहुल लोहरिया सर्च करना, मैंने प्लेलिस्ट दी है मेरे गानों की, मिल जाएगी। तो बस गाना शूट कर दिया, है ना। और वो गाना सुन के इतना हंसी आ रहा था, बिकॉज इतना फनी गाना था और ऐसा गाना किसी ने नहीं बनाया था, है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा रिलेटेबल, जैसे वहाँ पर एक सीन था कि मेनी ट्राइबल्स डोंट गेट लोन, ओके, फ्रॉम उनको ऑफिशियल सोर्सेस से, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर होता है वहाँ से लोन नहीं मिलता, है ना, इनफॉर्मली ही लोन लेते हैं बैंक से। और उस टाइम क्या हुआ था, यस बैंक खत्म हो गया था, मतलब यस बैंक क्राइसिस आ गया था ना, कुछ इशू हुआ था यस बैंक में। तो मैंने उसको भी डाल दिया कि तेलड़ा कोहलू कोरजू आप दे बैंक में बोल गोइलू कर्ज आप दे, है ना। तो वहाँ पे यस बैंक को नो बैंक, है ना। और उसमें, है ना, और ऐसा था कि बैंक वाले इशू मैंने डाल दिया था कि जैसे ही कोई सा बैंक बर्बाद होता है, हाँ. तो जैसे जो छोटे अकाउंट होते हैं, जो किसानों के अकाउंट होते हैं, और जो जितने भी पुअर लोगों के अकाउंट होते हैं, तो क्या था, बैंक ने नई स्कीम लॉन्च कर दी कि आप अब से जिसका भी 2000 से अमाउंट बैलेंस कम रहा अकाउंट में, उन सबका पैसा मंथली इतना कटेगा। हाँ. है ना। हाँ. तो मेनली मजदूरों किसानों का इतना मतलब ऐसा कम ही होता है, तो उनका कटना चालू हो गया। मेरी भी मम्मी का कटा था और मुझे गुस्सा था, मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया, मतलब ऐसा कि यस बैंक नो बैंक बर्बाद हो गया, कोई कर्ज नहीं दे रहा। हाँ. है ना, वगैरह, है ना। और फिर एक ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी उज्ज्वल योजना, उसमें ऐसा था जो एलपीजी गैस सिलेंडर सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ. तो सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए, है ना, बट रिफिल के लिए कॉस्ट लगता था 600 to 700 रुपीज, है ना, उस टाइम, अभी तो बढ़ गया है। हाँ. है ना। तो फर्स्ट सिलेंडर सबने गैस यूज कर लिया, फिर वो सिलेंडर घर में कोने में पड़ा है, गवर्नमेंट हैज नो स्कीम टू रिफिल इट, है ना, और बस वापस लकड़ियाँ जल रही, वो वाला भी इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, फनी और थोड़ा सा ऐसे इश्यूज रिलेवेंट गाना बना दिया। हाँ. तो सबको सुना, सबको बहुत मतलब ऐसा पसंद आया कि हाँ, है ना। फिर मैंने और गाने बनाना चालू कर दिए, है ना। तो अराउंड 4 to 5 सॉन्ग्स मैंने बनाए थे, मतलब थोड़ा टाइम इंटरवल देके, गैप था काफ़ी। तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट को करिकुलर, है ना, जिसको मैं किसी को दिखा सकता हूँ। हाँ. है ना, कि कोई मुझे क्या किया, गाने बनाए। हाँ. है ना। एंड फिर ये हुआ कि ये सब 11th में था। हाँ, ये सब 11th फरवरी में स्टार्ट हुआ था,
मतलब एंड हो रहा था 11th, बट मुझे कोई एग्जाम थोड़ी ना देनी थी। आई वाज जस्ट, मुझे 12th का एग्जाम देना, 11th इंपॉर्टेंट नहीं होता, 12th का एग्जाम देना, रिजल्ट मिल जाएगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्स, कॉलेज एंट्रेंस, सब कुछ, है ना। और साथ ही में मेरे को डर लग रहा था, मैंने कोरा पे पता नहीं हर वेबसाइट को लगभग पूरा पढ़ लिया था कि अगर कोई बच्चा 11th 12th नहीं पढ़ा है तो उसके साथ क्या होगा लाइफ में। हाँ, तो ऐसे ही चल रही थी मेरी लाइफ। और जैसे ही जुलाई स्टार्ट हुआ, 12th वाला टाइम स्टार्ट हो गया, बच्चे पढ़ने लग गए। मतलब मैंने जस्ट मेरे दोस्तों से पूछा, पुराना स्कूल मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में था तो वहाँ जाता था, अपने दोस्तों से मिलता था, वो पढ़ रहे होते थे नेट, मतलब कॉमर्स वाले नहीं थे वो, अजर कोई नेट, कोई जेई मेंस की तैयारी कर रहा है ना, वगैरह रेगुलर। मुझे भी अभी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो एक बुक खरीद ली, IPM, ओके। पढ़ने लगा, ज़रा भी नहीं समझ आना, साइड में कि कॉमर्स पढ़ने लग गया पूरा, है ना। तो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज सब खुद से बुक्स से पढ़ रहे हैं, और एक यूट्यूब वगैरह से। तो ये सब पढ़ा, और फिर अराउंड दिसंबर के अराउंड मैं जस्ट ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, दैट वाज अबाउट ओशो, ओके। ये वो नेटफ्लिक्स वाली नहीं, दूसरी वाली। तो वो बंदा बता रहा था कि ओशो वाज द पर्सन हु रेड मोस्ट, मतलब जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। मैं कितनी पढ़ी है? 1,50,000 से ज़्यादा किताबें। ये बंदा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर मैंने देखा, उसमें उसके कल्ट के बारे में था वगैरह। तो जो भी उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उसने ये बोला था कि तुम ओशो को पता नहीं कैसे भी परस्यू करो, बट आई वुड हाईली सजेस्ट टू रीड हिज बुक सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ जीने का पर्सपेक्टिव ही बदल देगी, है ना। तो मैंने जस्ट एक दोस्त को कॉल किया, पता है मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और उसमें एक आदमी बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, पता नहीं वो क्यों बोल रहा था, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस जरूर पढ़ना। मैंने फोन काटा, 2 दिन बाद दोस्त का कॉल आता, भाई सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस पढ़। क्यों, तूने पढ़ ली? हाँ। क्या मिला? दुनिया पलट जाएगी भाई, मतलब अपन मतलब पढ़ उसको तू बस। मतलब तेरी सोचने, मतलब तेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। लाइक PDF है? हाँ है, फॉरवर्ड कर। उसने फॉरवर्ड किया, मैंने पढ़ना चालू किया। लाइक फर्स्ट स्टोरी थी उसमें एक इंसान की, कि वो तालाब किनारे बैठा होता है और बहुत ही ग्रीफ में होता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है ना। आई वाज लाइक रिलेटेबल। हाँ, तो वो क्या कर रहा होता है कि बस ऐसा बैठा होता है, ऐसे हाथ फैला लेता है। तो ऐसे हाथ ऐसा फैलाता है तो उसको पता चलता है कि उसके साइड में कुछ ऐसे कुछ रखे हैं, पोटली रखी है। पोटली में हाथ डालता है, पत्थर मिलता है, जस्ट पत्थर उठा के फेंकना चालू कर देता है ना। तो रात का टाइम होता है और सुबह हो जाती है, और देखता है कि पोटली में लास्ट पत्थर, इस तरह हाथ ले जाके लास्ट पत्थर फेंकता है, ओके। तो जैसे ही लास्ट पत्थर फेंक रहा होता है, फेंकता और देखता है इस तरफ, तो देखता है उसके हाथ में डायमंड है, और उसको रियलाइज होता है कि उसने पूरी डायमंड भरी पोटली फेंक दी सामने वाले तालाब में, और वो सामने वाले तालाब से निकाल नहीं सकता फॉर सम रीजन कि उसमें कुछ है, या मगरमच्छ जो भी है, बहुत खतरनाक एरिया है। उसको पता चलता है कि उसके पास बस लास्ट डायमंड देखा, और दैट वाज लाइक ओ माय गॉड स्टोरी। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन था, यू आर जस्ट, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव डायमंड्स, यू आर जस्ट थ्रोइंग इट, तुम बस रियलाइज नहीं कर रहे हो, तुमको बस एक बार पोटली को ढंग से देखना है कि वो है क्या, और बस यू विल बी रिच, है ना। दैट वाज लाइक भाई ये भयंकर है। तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट डाइव इनटू फिलॉसफी, है ना। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज थी जो मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दी, मतलब वर्ल्ड को देखने का, सोचने का, है ना। तो दैट बुक हैज समथिंग अबाउट सेक्स, बट सेक्स के सिवा बहुत कुछ है। वो बुक बेसिकली बताती है कि तुम, मतलब वर्ल्ड इज सेंटर्ड अराउंड सेक्स, है ना। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक बुक जिसका नाम हो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उसकी शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल होगी, है ना। तो उसने फुल
सेक्स के टुवर्ड्स सेक्स के प्रति मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, प्लस जनरल वर्ल्ड के, है ना। तो मैं लाइक अब मुझे इस बंदे की और बुक्स पढ़नी है, ओशो की, है ना। और बुक पढ़ना चालू, इंटेलिजेंस पढ़ी, है ना। इंटेलिजेंस वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इंटेलिजेंस लाइक अनदर मास्टरपीस, ये भी बहुत अमेजिंग बुक है। फिर एक मैंने बुक पढ़ी क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी, और उसने क्रिएटिविटी को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। लाइक दिस इज द बेस्ट बुक, और दिस इज द मतलब चलो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो मैंने एक के बाद एक करके बुक्स पढ़ता रहा उसकी। तो अराउंड ऐसे करते करते मैंने उसकी ओशो की अराउंड 8 to 9 बुक्स पढ़ ली। वाओ, है ना। हाँ। और टोटली अमेजिंग, फुल फिलोसॉफिकल। तो उसी में मैंने सॉक्रेटी के बारे में पढ़ा, उसी मैंने मतलब डिफरेंट फ्रूड, सिगमंड फ्रायड, हाँ, उसके बारे में भी उन्हीं बुक्स में पढ़ा, क्योंकि वो जो अपनी रीजनिंग्स है वो साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग साइंटिस्ट की रीजनिंग देके समझा। तो वहाँ पर इन सब फिलोसोफर, साइंटिस्ट के बारे में, सब के बारे में ऐसा नॉलेज और ऐसा पर्सपेक्टिव मिलने लगा, है ना। फिर लाइक अब फिलोसफी बहुत हो गया, शायद मेरी 12th की एग्जाम आ रही है। तो मैंने अराउंड जनवरी फरवरी मार्च, है ना, वहाँ तक कोविड के टाइम पे, दिसंबर में मैंने फिलोसफी को ऐसा अब मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, क्योंकि बोर्ड्स ले लेगी वरना लाइफ, है ना। तो मैंने बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चालू कर दी। और आईपी मैट का क्या, मैंने सोचा कि अरे यार आईपी मैट भी है, लग तो नहीं रहा कि हो पाएगा, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन तो करी नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। बट बोर्ड्स के लिए तैयारी कर लेते, बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज ले आएंगे तो अच्छे परसेंटेज, अच्छी इज्जत, है ना, मतलब ऐसा कि लोगों को ऐसा ट्रस्ट होगा कि हाँ इस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। और इसको मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि मैं खुद के पैसों पे तो ऐसा पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है जिसमें हम हार्डली सरवाइव करते थे घर पे एज अ फैमिली, क्योंकि मेरी मम्मी की इनकम अराउंड उस टाइम अराउंड 6,000 रुपीज थी, 6,000 फॉर अ मंथ, तो हार्डली सरवाइव करते थे, है ना। तो मेरे को समझ में आ गया था कि आई कांट स्टडी ऑन माई ओन, मतलब मेरी फैमिली के खर्चे पे। तो इतना समझ में आ गया था कि मुझे जो भी पैसा मिलेगा बाहर से मिलेगा, और बाहर से मिलेगा तो मेरा पास्ट रिकॉर्ड और परसेंटेज वगैरह देखेंगे। तो बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, आईपी मैट नेक्स्ट ईयर दे देंगे ड्रॉप लेके, है ना। मैंने ये सोचा, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। एक दिन मैसेज आता है, बोर्ड्स कैंसल्ड। इट्स लाइक व्हाट, आईपी मैट की प्रिपरेशन कर लेता मैं। हाँ ठीक है, अब कर लेते हैं प्रिपरेशन। 3 महीना टाइम, शायद 2.5 या 3 महीना बाकी था। एक सेकंड रुक जा, फिर तुझे बोर्ड्स में मार्क्स कैसे मिले फिर? बोर्ड्स में एमपी बोर्ड ने मतलब वो निकाली स्कीम, कि बोर्ड्स में मार्क्स कैसे देंगे, है ना, क्योंकि सबका ऐसा चल रहा था सिस्टम, शायद मेरा एग्जाम होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था। सबका पहले कैंसिल हो गया, बट मेरा पहले कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि आई वाज अ प्राइवेट कैंडिडेट। सबका इवैल्यूएशन होगा 11th और 12th के बेसिस पे। तो मेरा कैसे होगा? मैं तो 11th और 12th के कोई भी एग्जाम नहीं दिया। तो बहुत 1 महीने बाद गवर्नमेंट आई कि जो तुम्हारा 10th का रिजल्ट था उसके बेसिस पे इसका इवैल्यूएशन होगा। तो मुझे 82.8% मिल जाएगा। ऐसा मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये है, तो मुझे इतना % मिलेगा। हो गया, चलो 82.8 ठीक है, कोई बात नहीं। आईपी मैट की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, क्योंकि मैंने कहीं एक वीडियो देख लिया था, you can clear IP MAT in 1 month. I have 2 months. तो अब कॉन्फिडेंस दे दिया था उस वीडियो ने, मोटिवेट कर दिया था। I was like, करते हैं प्रिपेयर। मैथ्स के सवाल लगा रहे हैं, सारे सवाल लगाए, और ऊपर से इंग्लिश वो वर्बल एबिलिटी, बिकॉज मेरे स्कूल में उतना इंग्लिश का माहौल नहीं है, है ना। मतलब people usually don't speak
इन इंग्लिश। हमारा जो सोशल साइंस था उसमें भी हिंदी में ही आंसर लिखते थे, और साइंस था उसमें इंग्लिश में लिखते थे। बट साइंस में ऐसा होता था क्योंकि वो साइंस है तो उसमें कुछ टर्म्स होती थी, लोग टूटी फूटी इंग्लिश लिखते थे मेरे स्कूल में। जैसे कुछ ही बच्चे थे जो कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे, वही अच्छी इंग्लिश लिख पाते थे, बाकी भी लिखते थे और बहुत से बच्चे इंप्रूव कर लिए थे, बट मैक्सिमम हिंदी में चलता था, है ना। सोशल साइंस इन हिंदी, हिंदी इन हिंदी, इंग्लिश इन इंग्लिश, मैथ्स इन इंग्लिश, साइंस इन इंग्लिश, एंड वी हैड थर्ड लैंग्वेज ओडिया। और कोई हिंदी में बात ही नहीं करता पूरे स्कूल में, है ना। जस्ट फॉर्मल मीटिंग, जो फॉर्मल असेंबली होती थी उसमें इंग्लिश में बोलते थे वगैरह, ऐसा था। और थोड़ा बहुत इंग्लिश टीचर के साथ हो गया ना, वरना मोस्टली हिंदी, क्योंकि गांव के बच्चे पूरे हमारे स्कूल में, तो इंग्लिश उतना नहीं था, तो मतलब इंग्लिश बर्बाद है। बट एक अच्छी बात थी कि मैं जब 10th में या 9th में अराउंड था, वंडर वुमन मूवी आई थी, है ना। अब मैं सुपर हीरो का डाई हार्ड फैन, है ना, हर सुपर हीरो मूवी देखेंगे हम, बट वंडर वुमन को हिंदी में रिलीज ही नहीं किया। भाई ये क्या मतलब, ये क्या बात हो गई, ऐसे क्यों नहीं रिलीज किया? इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में सबटाइटल मैंने 3 बार देखी ताकि पूरी मूवी समझ आए, है ना। वाज लाइक माय फर्स्ट एंट्रेंस टुवर्ड्स इंग्लिश मूवीज, है ना। फिर सुसाइड स्क्वाड, उसको भी नहीं हिंदी में रिलीज करेंगे, उसको भी इंग्लिश में, उसको भी सबटाइटल के साथ 2-3 बार देख के समझा। अब कंटिन्यूएशन हो गया मेरा इंग्लिश मूवीज के साथ, तो वो एक अच्छा बात था, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर दी उसने। मतलब एटलीस्ट मैं समझ जाता था व्हाटएवर इज हैपनिंग, है ना। मतलब पहले भी आता था, बट जो इतना फास्ट पेस होता था और जो बोलने का स्टाइल था इंग्लिश का, बोलने का स्टाइल मुझे नहीं पता था, बस लिखने का थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि है ना, बोला कभी ऐसा इतना ज्यादा लाइफ में नहीं था। और इंटरव्यू इंग्लिश में देना है ना। तो मैंने जो बुक्स पढ़ी थी ना, एक तो वो हेल्प हो गई, सारी ओशो की बुक्स इंग्लिश में पढ़ी थी, है ना। तो जितनी भी बुक्स वगैरह वो हेल्प, वोकैबुलरी वगैरह वो इम्प्रूव कर दी थोड़ी सी, है ना। और सब कुछ तो मैंने देखा कि वहाँ IPMAT बुक सजेशन, देखा कि वर्ड पावर मेड इजी, खरीदो उसको, पढ़ो, वो पढ़ ली, है ना। और मैथ्स के लिए जस्ट एक बुक खरीद ली, और उसमें जो टॉपिक है उससे YouTube और PDF वगैरह पढ़ने लग गए। और मेरा एक दोस्त था, उसने भी बोल दिया था कि वो, उसको पहले आर्म्ड फोर्स में जाना था, एयर फोर्स में, NDA, बट जब उसने सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस पढ़ी, उसका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, है ना। अब उसको मतलब अब उसको ना आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जाना था, है ना, उसको भी लाइफ में कुछ करना था। मैंने बताया ये IPMAT करके कुछ है, इसमें जो 3 साल में ना फिलोसफी भी एज ए सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी एज ए सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी भी एज ए सब्जेक्ट है ना, और कॉमर्स तो है ही, तो अमीर भी बनना है, प्लस ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो कर ले कोर्स। नहीं, मैं JNU जाऊंगा, है ना, मैं करूंगा BA, है ना, BA करूंगा और UPSC की प्रिपरेशन। फिर हमने JNU के वीडियोस देखे, JNU की कंट्रोवर्सीज भी उस टाइम चल रही थी ना, JNU की भयंकर से भयंकर वाली सर फोड़ने सारी कंट्रोवर्सीज का जो पीक था ना, वो ये था, है ना। तो लाइक थोड़ा ऐसा सोचना पड़ेगा JNU जाए कि नहीं, है ना। तो मैं भी था, तो मैं भी लीग में था कि मैं भी JNU जाऊंगा, है ना। मेरा एक दोस्त JNU में है, और एक दोस्त IPMAT की अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है, उसने ड्रॉप लिया है, मोस्ट प्रोबेबली उसका हो जाएगा, है ना। तो उसने ही मुझे कॉल करके बताया था सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस पढ़ ले, लाइफ बदल जाएगी, है ना। तो ऐसा हुआ, है ना। तो प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने क्लियर कर लिया इंटरव्यू कॉल। अब इंटरव्यू कॉल क्लियर कर लिया तो बल्ले ही बल्ले लाइफ में, अब तो लगा हो ही जाएगा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। बट इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए, एक क्वेश्चन पे अटका दिया मुझे, लाइक एक ग्राफ बनाया, है ना, डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ, है ना। मैं बहुत ज़्यादा था टेंस्ड, है ना, क्योंकि किसी ऑफिसर से 2 साल से बात नहीं की थी, ना ही टीचर से, मतलब इतना स्ट्रिक्ट जो था ना, वो पहली बार ये मीटिंग थी मेरी, है ना। लाइक, है ना, तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, मेरा सही था आंसर, ये गलत है, लाइक आई थिंक इट्स राइट, इट्स रॉन्ग, यू फाइंड वेयर इट इज रॉन्ग।
तो मैं बस ढूंढने लगा, 2-3 मिनट तक ढूंढने लगा। उतने में मेरे घर की लाइट चली गई, दुम, है ना। क्योंकि मैंने लैपटॉप उधार किसी से लिया था, तो लैपटॉप था बट वाईफाई बंद हो गया। लाइक रिकनेक्ट द मोबाइल हॉटस्पॉट, मीटिंग ज्वाइन किया और तब तक मैंने आंसर नहीं दिखाया था। सॉरी, आंसर उससे पहले नहीं दिखाया था, उसके बाद आंसर दिखाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सब चीटिंग करके तो नहीं बता रहा है। आंसर दिखाया, उन्होंने बोला गलत है, मैंने बोला सही है। मैंने कुछ चीटिंग नहीं की, है ना। तो इट्स लाइक इसी में हो गया मेरा सही, मतलब मैंने मान लिया, एट लास्ट में कन्विंस हो गया कि सॉरी मैंने गलत आंसर लिख दिया, है ना। इंटरव्यू खत्म, एंड फिर मैंने चेक किया आंसर, ये तो सही था, इसने मुझे बाद में गलत करवा दिया, है ना। अब देखते हैं, मतलब इंटरव्यू उससे पहले बहुत 100% सही चल रहा था, है ना। बस ये ग्राफ वाली गलती हो गई, है ना। फिर लाइक हो ही जाएगा, एक गलती तो होती है हर किसी से, है ना। आया रिजल्ट, है ना। मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा ईमेल। यूट्यूब पे एक चैनल पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है, आ गया रिजल्ट, इन बच्चों का सिलेक्शन, है ना। मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ईमेल डिलीवर क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने शाम तक ईमेल चेक किए, रिफ्रेश करते, मुझे अभी तक ईमेल नहीं डिलीवर हुआ। फिर मैंने 2-3 जो आई एम रोहतक में जिनसे मैंने थोड़ा सा ऐसा पूछा था कि कैसे होता है, उनसे भी मैंने पूछा, है ना। वेट लिस्ट में तक मेरा नाम नहीं, ओके। लाइक खत्म, क्या करें अभी। लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा, कि जैसे ही मुझे पता चला मेरा नहीं हुआ, सर दुखने लग गया, घर पे आ गया, लेट गया, है ना। और उस दिन मेरी बहन का बर्थडे था, है ना। मैं चाह कर भी खुश नहीं हो पा रहा था, है ना। हमने मंचूरियन लाए थे, केक नहीं लाया था, मंचूरियन लाया था ना एज अ बर्थडे गिफ्ट, है ना। मंचूरियन और नूडल्स, क्योंकि उसको पसंद है थोड़ा, केक नहीं लाया। तो वेरी सैड, है ना। चाह रहा हूँ खुश होना, बट नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब सामने वाले को पता चल रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है ना। मतलब गुड़िया ने ही बोल दिया कि दिख रहा है ना, मतलब नहीं दिख रहा है कि तू खुश है ना। मम्मी ने भी बोल दिया। लाइक फिर मैं 2-3 दिन तक ऐसा सोया रहा, मतलब ऐसे ही चुप रहा। फिर तीसरे दिन मेरे दोस्त का कॉल आता है ना। मतलब मेरा तो कट ऑफ तक नहीं क्लियर हुआ, तेरा कट ऑफ क्लियर होगा, मतलब तेरे में बात है, है ना। तो आई एम रांची भी तो अप्लाई किया था, वहाँ कर दे। बट वो आई एम रांची है यार, है ना। मतलब मैंने सुना उसका एवरेज पैकेज ऐसा कम है वगैरह, थोड़ा सा है, अभी अभी स्टार्ट कर रहा है IPM प्रोग्राम। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा हूँ। तो मैंने आई एम रोहतक वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने मतलब क्लियर किया कि राहुल, पहली बात है ना, तू 11th 12th नहीं पढ़ा है ना। तो ध्यान में रख, जब तेरा इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा होता है तेरे रिजल्ट में, है ना। मतलब मानो या ना मानो, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करने वाले बच्चे। तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता, है ना। बट माइट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइवेट कैंडिडेट, हाँ, है ना, है ना। तो आई एम रांची इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो जा, लाइक हाँ चले जाते हैं। वैसे भी लाइफ में है ही क्या, नहीं लेते हैं ड्रॉप ईयर, है ना। तो मैं अब बस उसका वेट कर रहा था कि, क्योंकि इधर तो क्लियर हो गया, उधर तो हो ही जाएगा, इंटरव्यू के लिए तो कॉल आ ही जाएगा। तो आ गया कॉल, है ना। अब मैंने इंटरव्यू की तैयारी भयंकर कर ली, है ना। इंग्लिश भी भयंकर फ्लुएंट कर ली। मेरे दोस्त को बोला था कि हिंदी में मुझसे बात ही नहीं करियो, सिर्फ इंग्लिश में, कुछ भी हो इंग्लिश में कॉल करके, तो उससे डेली 1-2 घंटा इंग्लिश में बात करो, है ना। तो वहाँ मॉक इंटरव्यूज वही मेरा दोस्त ही लेने लगा, और जो भैया थे वो थोड़े 2 इंटरव्यू लिए, और कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने बच्चों को इनवाइट कर लिया था इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर मैंने 2 इंटरव्यू दे दिए, तो लाइफ में कॉन्फिडेंस आ गया था। आई एम इंदौर के इंटरव्यू से पहले ही ये इंटरव्यू दे दिए थे, है ना।
तो ऐसा लगा कि हो जाएगा, बट डर था, है ना, क्योंकि पहले मतलब हार इतनी भयंकर मिली थी, इट वाज लाइक उठ नहीं पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं था कि मर जाएंगे, मतलब नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मतलब कितना भी ट्राई कर लो, बिकॉज ये IIM वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट। और उस वक्त मुझे एक और कैच पता चला कि, है ना, जस्ट छोटे मोटे स्कोर से सिलेक्ट, कि मेरे को मतलब जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, 65% वेटेज इज टू एग्जाम और बाकी इतना % इंटरव्यू। और मैंने ये लगा कि हाँ स्कोर कम था मेरा, है ना, स्कोर कम था, वो हो सकता है क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी 2 महीने के उसमें दी, तो स्कोर कम था, है ना, तो इंटरव्यू में मुझे जी जान लगानी है ना, स्कोर कम है मेरा IP मैट स्कोर। तो IIM रांची का इंटरव्यू हुआ, है ना, इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, इंटरव्यू में बीच में क्वेश्चन आया था, हाउ यू विल रीच मार्केट, है ना, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में बोल दिया था कि दैट आई वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर नॉट मैनेजर, है ना। मैनेजर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मुझसे पूछ लेंगे बाद में, और वो मुझे ऐसा थोड़ा सा कहीं अटक जाऊंगा मैं और पकड़ लेगा इंटरव्यूअर, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंग्लिश मतलब हु इज एन एंटरप्रेन्योर, है ना, and who is an entrepreneur, what's the difference between business and entrepreneurship? It was like entrepreneurship is like managing company, shareholders, employees, customers, है ना, and business is like the shopkeeper is also a businessman, खुद बेच रहा है, खुद कमा रहा है, it's a business, है ना, सारे मतलब। तो मैंने एक्सप्लेन करने लग गया, है ना, सब बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन आया हाउ यू विल, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पे घुमा रहे, कभी जारा से लेके क्वेश्चन, जारा को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कि समझ लो तो जारा का CEO है, दे आर द CEO ऑफ जारा, एंड यू नो दैट जारा इज एक्सप्लॉइटिंग पीपल इन वियतनाम, ओके, वहां पर मजदूरों को बहुत कम पैसा देके काम करवा रही है, इंडिया में लाके कपड़े महंगे महंगे बेच रही है ना, है ना, व्हाट्स योर से ऑन दैट। उन्होंने बोला, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पहले समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं, है ना, कि व्हाट्स योर से ऑन दैट, है ना। मैंने बोला सेफ खेलते हैं, इट्स लाइक मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आई विल फोकस ऑन द लेबर्स वगैरह वगैरह, बट उनको जवाब पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फिर से उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और जोर से पूछा, है ना, फोकस करके पूछा, है ना। फिर मुझे मतलब उन्होंने और एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को कि तेरे पास मतलब यू आर एन एंटरप्रेन्योर, है ना, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉयज को सैलरी बढ़ानी है, मजदूरों को मतलब ये करना है ना, उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है, प्लस तुझे कस्टमर्स को भी सस्ता प्रोडक्ट देना है, हाउ यू विल मैनेज। तो मैंने बोला विल फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट ओके। फिर मैंने और एक्सप्लेन कर लिया, मैंने YouTube पे कहीं देख लिया था Amazon की केस स्टडी, तो वहाँ पर जो भी था, जो केस स्टडी बनाया था, वो बोल रहा था कस्टमर इज द किंग एंड यू आर द सर्वेंट, दिस इज द फिलोसफी ऑफ जेफ बेजोस। इस वजह से वो बोला आई विल सेटिस्फाई कस्टमर, है ना, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दूंगा, है ना। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुआ है पहली बार, है ना, मतलब वो दूसरी बार जब आएगा उसी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन दिया है मतलब आपके प्रोडक्ट से, है ना, तो वो आपके पास दूसरी बार आएगा, है ना। समझ लो प्रोडक्ट 10 रुपए का है ना, आप बेचो 8 रुपए में, आपके पास आया, अच्छा प्रोडक्ट है ना, और सब 10 रुपए में बेच रहे हैं, है ना, आप थोड़ा डिस्काउंट करके दे दो और आपके पास से आता रहेगा, है ना। तो सबका अगर एक ही बार बिक रहा है, आपने प्राइस कम कर दिया और उसको वापस खरीदना आपके पास आएगा, तो कस्टमर सेटिस्फाइड बार बार आता रहेगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, है ना, और यू विल बी लाइक वेरी वेल इन द इंडस्ट्री, सब बढ़िया चलेगा। अब लगा कि हाँ आंसर अच्छा लगा उनको, है ना। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू विल, मतलब मार्केट को तू रीच कैसे करेगा, समझ ले कुछ, तू स्टार्टअप कैसे करेगा, हाँ मतलब मार्केट पहुंचेगा कैसे, मतलब मैं सोचा, समझ नहीं आया कि तू मार्केट रीच, क्वेश्चन क्या है समझ नहीं आया। फिर उन्होंने फिर से थोड़ा एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन, तू मार्केट मतलब ऐसे रीच कैसे करेगा। Hello again.
I'm sorry, there was an issue with the cameras. So one of the cameras, which is my phone, stopped recording. The audio still kept continuing, and we were at your interview where the professor asked you कि how are you going to reach the market? हाँ. है ना. तो जब मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ यू विल रीच द मार्केट, मतलब अप्रोच ही कैसे करेगा, हाँ. इट वाज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी. हाँ. ओके, अब मैं बताता हूँ मैंने बीच में क्या किया था कि व्हाट आई सेड इन द इंटरव्यू. व्हाट आई सेड इज, मतलब क्योंकि मेरे पास आई वाज फ्री ना, आई वाज नॉट इन स्कूल. ओके, सो अराउंड अगस्त इन क्लास 12th, है ना, we decided to do something related to tribal people, Adivasi people in our area. Okay, so we just want हमने बस सोचा था कि हम एक blogging website launch करेंगे. So we just started that, some content about the tribal freedom fighters. Okay, like Tantia Bhil, Khaja Naik, Birsa Munda, है ना, and our local freedom fighters too. Okay, so we thought that we'll do that and we'll just put out some things like editorial, that what are our views on that, what are other people views on that. And हमने कुछ देखा था कि कुछ लोग फेसबुक ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते हैं. हम जस्ट उनसे पूछेंगे और उनसे पूछ के वो ब्लॉग्स एज उनको कंटेंट राइटर हमारा बना लेंगे, है ना. मतलब उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको क्योंकि उतना टेक वगैरह नहीं आता, तो उनको बस हमें फॉरवर्ड करना होगा और हम उधर कर देंगे पब्लिश. है ना. तो वो स्टार्ट करने का सोचा, है ना, कर भी दिया. थोड़ा बहुत ब्लॉग्स रखा, है ना. बट दिस वाज द कोविड सीजन. ओके, सो व्हाट आई सेड इन इंटरव्यू आफ्टर दिस क्वेश्चन इज, he asked me how you'll reach the market. I said, okay, I'll give you my example that how we reached the market. Okay, we adivasipeople.com decided to blog about आदिवासी people, है ना. कि हमने ये सोचा था कि ब्लॉगिंग करेंगे आदिवासी पीपल को, ट्राइबल पीपल को उठा के, क्योंकि हमारे एरिया में वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया इन इंडिया, है ना. तो इनका कुछ तो करना है हमें, है ना, ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, कुछ करेंगे. तो हमने वो स्टार्ट किया, दैट वी डिसाइडेड टू ब्लॉग, थोड़ा बहुत डाटा डाला. देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट we were asked that can you do live stream, है ना. Then we said that yes we can do. So how we reached the market, because no media was focusing on tribal people. We thought that we'll focus on tribal people. और जैसे ही मार्केट में घुसे, we got an opportunity that are you able to do live stream, that because हमको live stream करवाना है ना. आदिवासी पीपल, है ना. कुछ लोकल ट्राइबल लीडर्स थे, क्योंकि हमारे काइंड ऑफ ट्राइबल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उन्होंने हमें रीच किया, क्योंकि आदिवासी एकता सम्मेलन होता है ना. तो उसकी लाइव स्ट्रीम तुम कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन प्रोग्राम अभी हो नहीं रहा है ना. वो लोग हमारे पास आए, क्योंकि हम उनके ही पास थे, है ना. हम थोड़ा सा हो गया था, है ना, और थोड़ा सा नेटवर्किंग थी हमारी, है ना. बस नेटवर्क से मिल गया कि लाइव स्ट्रीम करना है, मैंने बोला कर देंगे, है ना. मैंने तभी देखा कि OBS सेटअप कैसे करते हैं वगैरह, तभी सीखा अराउंड. उससे पहले यू डिडंट नो एनीथिंग. हाँ, आई डिडंट नो एनीथिंग, है ना. और तब सीख लिया 5-1 दिन में. बोला कर देंगे अभी, है ना. कर दिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया और कर दिया, है ना. दैट वाज लाइक adivasipeople.com ने लाइव स्ट्रीम किया है यूट्यूब पे, है ना. फेसबुक पे ऐसा नाम से, मतलब ऐसा नाम आ गया कि adivasipeople.com कुछ तो है, लाइक ब्लॉगिंग और लाइव स्ट्रीमिंग. क्योंकि जो आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासी एकता सम्मेलन करवाता है, उसका लाइव स्ट्रीम किया था, तो हमको बहुत स्पॉटलाइट मिल गया. और वही मैंने इंटरव्यू में बता दिया कि मतलब अ काइंड ऑफ वी बिकेम अ मीडिया कंसल्टेंसी कंपनी फॉर आदिवासी पीपल, है ना. हमने उनका प्रोग्राम उनके मतलब उनकी ऑडियंस तक पहुंचाया, जो लोकल ट्राइबल लीडर्स थे. कैसे पहुंचाया? व्हाट्सएप नेटवर्क्स, कि उनके व्हाट्सएप पे नेटवर्क्स थे, मेनली नॉट ऑन इंस्टाग्राम बट ऑन फेसबुक एंड ऑन व्हाट्सएप. सो वी जस्ट फ्लोटेड लिंक्स, मतलब जो भी छोटे छोटे मार्केटिंग कैंपेन, मतलब जो, क्योंकि अगर आप देखो ना लोकल लेवल पर व्हाट्सएप पर काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है.
गुड मॉर्निंग ऑडियंस, मतलब जो भी है ना, तो हमने उनके हिसाब से मैसेज हिंदी में कंपाइल करे, उसको फॉरवर्ड करते थे। जो भैया थे, हम 4 लोग थे स्टार्ट करने वाले, है ना, तो वो फॉरवर्ड करते थे ना, तो ऐसे किया। जो भी था मैंने पूरा बता दिया, लाइक adivasipeople.com, मतलब लाइक, और हमने ऐसा स्टार्ट कर दिया। तो शुरू में हमने की 4 लाइव स्ट्रीम, है ना, फिर हमने अराउंड फरवरी में या फिर मार्च में और 4-5 लाइव स्ट्रीम की, 4-5 ही की, हाँ, मतलब लगभग उतनी। और जो हमारा प्रोग्राम था अराउंड 3rd लाइव स्ट्रीम में शायद चीफ गेस्ट बहुत बड़ी हस्ती आने वाली थी। एमपीज और एमएलएस थे, एमपीज और एमएलएस लाइक लेवल था उनका, कि हाँ कि भाई एमपीज और एमएलएस लाइव आ रहे हैं, जिसको हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा, तो उनके पास भी हमारा लिंक जा रहा होगा, तो उनके पास भी था ऐसा हमारा नाम। और फरवरी मार्च के अराउंड उसमें डेट होगी लाइव स्ट्रीम की मेरे चैनल पे, है ना। हमें मतलब हमको मौका मिला कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, है ना, उकेई मैम, ओके, शी वांट्स टू डू, मतलब बिकॉज शी, मतलब उनको वो आ रही है एक प्रोग्राम में, और वो, है ना, प्रोग्राम में और लाइव करना है, क्योंकि बहुत सारे और ट्राइबल लीडर्स वगैरह आ रहे हैं। तो लाइक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल करेंगे लाइव स्ट्रीम, उसमें भी लाइव स्ट्रीम, लाइक अ ह्यूज स्पॉटलाइट, है ना, ऑन अस, adivasipeople.com। और यही मैंने इंटरव्यू में बता दिया, है ना, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए, है ना, ऑब्वियसली, है ना। और आई वाज लाइक नहीं होगा, मतलब इंटरव्यू में भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो रह गया है, कुछ तो और करना चाहिए। आई वाज लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मैं इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने ना मेरा एनसीसी और स्काउट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको सबमिट नहीं किया था रांची में। आई वाज लाइक वो गलती कर दी मैंने। सो मैंने, मतलब इंटरव्यू रैप अप कर रहे थे वो, मैंने जस्ट प्रोसेस करोगा, वेट प्लीज, एक्चुअली आई हैव नॉट सबमिटेड माय सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, मतलब दैट वोंट जस्टिफाई, मतलब ऐसा मैंने ही नहीं किया। बट आई हैव रिटन रैप व्हिच इज रिदम प्लस पोएट्री एंड पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब एंड गॉट दिस मच अमाउंट ऑन यूट्यूब, है ना। तो और ये किया है, मतलब सब कुछ बोल दिया कि क्या करा। मैं बोला, ओ कैन यू सिंग योर रैप सॉन्ग फॉर अस? हाँ, लाइक गा दिया। लाइक दिस वाज वेरी नाइस, मतलब वंडरफुल, nice to meet you, interview ended, and I was like चलो हो गया इंटरव्यू, बट लगता नहीं है होगा, है ना। और हाँ, हम रांची में हो गया। बाकी की स्टोरी, हाँ। सो ये इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबी हो गई है, तो there is a lot more that I think we have to talk about. How so Adi and I, in the last podcast, the two of us were talking how some of our friends were in Singapore. Rahul was one of the 3 people who was in Singapore, and there's a story behind how they got there. There's a lot of stuff that we want to talk about, and we'll go ahead and record a second episode based on the responses of this episode and in general, because we have a lot of things to talk about. So that's it for today. I really hope you guys enjoyed this episode. I really enjoyed this episode. There is so much that I had no clue about that I just found out. And until next time, this was your host Bipasha signing off.